السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ الیکشن کمیشن 57 حلقوں کے لیے ضمنی انتخابات کا شیڈیول کا مناسب وقت پر اعلان کرے گا۔ ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ 56 اسمبلی اور 1 لوک سبھا نشست کے منجملہ 57 حلقوں کے لیے ضمنی انتخابات ہونا ہے۔ یہ تمام انتخابات ایک ساتھ منعقد کیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کا یہ اعلان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب اس نے کووڈ-19 اور سیلاب کی صورتحال کے پیش نظر 8 حلقوں کے ضمنی انتخابات ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا، جن میں 7 اسمبلی اور 1 لوک سبھا حلقہ شامل ہیں۔ ان 8 حلقوں کے لیے ضمنی انتخابات منعقد کرانے کے لیے مقررہ 6 ماہ کی مدت 7 سپٹمبر کو ختم ہونے والی ہے، جبکہ بقیہ 49 حلقوں کے لیے مدت سپٹمبر کے بعد کی ہے۔ مرکز نے تمام ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں سے کہا ہے کہ وہ یوم آزادی تقاریب کے موقع پر بڑے اجتماعات سے گریز کریں اور سماجی دوری کو یقینی بنائیں۔ اس کے علاوہ یوم آزادی تقاریب کو آن لائن پیش کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ نے اپنے مشاورتی نوٹ میں کہا کہ کووڈ سپاہیوں مثلاً ڈاکٹرز، ہیلتھ اور سینیٹیشن ورکرز کو تقریب میں مدعو کیا جانا چاہیے تاکہ وبا کے خلاف لڑائی میں ان کی عظیم خدمات کو تسلیم کیا جا سکے۔ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ انفیکشن سے صحت یاب ہونے والے بعض افراد کو بھی مدعو کیا جا سکتا ہے۔ میگھالیہ حکومت نے شیلانگ میں 26 تا 29 جولائی مکمل لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ کووڈ-19 کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ ناگپور میں بلدی عہدیداروں نے ہفتہ اور اتوار کو شہر میں جنتا کرفیو کا اعلان کیا ہے۔ کیرالہ کے چیف منسٹر پی وجین نے کہا ہے کہ فی الحال ریاست میں مکمل لاک ڈاؤن نافذ نہیں کیا جائے گا۔ کولکاتہ ایئرپورٹ میں 25 اور 29 جولائی کو پروازیں نہیں اتریں گی کیونکہ دونوں دن ریاست میں لاک ڈاؤن ہے۔ لاک ڈاؤن کے پیش نظر ٹرینیں بھی منسوخ کی گئی ہے۔ سینئر بی جے پی لیڈر ایل کے اڈوانی نے 1992 میں بابری مسجد کے انہدام سے متعلق کیس میں سی بی آئی کی خصوصی عدالت میں اپنا بیان ریکارڈ کرایا اور متنازع ڈھانچے کو گرانے کے لیے کسی بھی سازش میں اپنے رول کی تردید کی ہے۔ 92 سالہ سابق نائب وزیر اعظم کا بیان سی بی آئی کی خصوصی عدالت کے جج ایس کے یادو کی عدالت میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ریکارڈ کیا گیا۔ اس موقع پر ان کے وکلاء ومل کمار سریواستو، کے مشرا اور ابھیشیک رنجن اور سی بی آئی کے وکلاء للت سنگھ، پی چکرورتی اور آر کے یادو بھی موجود تھے۔ اڈوانی نے ادعا کیا کہ وہ بے قصور ہیں اور سیاسی وجوہات کی بنا پر غیر ضروری طور پر ان کے نام کو گھسیٹا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کارروائی کے دوران مناسب مرحلے پر اپنا دفاع کریں گے۔ اڈوانی نے سی بی آئی جج سے کہا کہ یہ تحقیقات سیاسی دباؤ میں کی گئی اور جھوٹے شواہد کی بنیاد پر چارج شیٹ داخل کی گئی۔ خصوصی جج نے اڈوانی سے 1050 سوالات کیے اور انہوں نے محتاط طریقے سے ان کا جواب دیتے ہوئے سازش کے الزامات کو مسترد کر دیا اور کہا کہ مقدمے کے دوران کسی بھی موقع پر انہیں نقطہ نظر پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ جب جج نے انہیں بعض ویڈیو کلپنگ، اخباری رپورٹس اور 1992 کے واقعے کے سلسلے میں دیگر شواہد پیش کیے، اڈوانی نے انہیں مسترد کر دیا اور کہا کہ وہ جھوٹے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اپنے اسرائیلی ہم منصب کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ انہوں نے چین کے ساتھ تناؤ، کورونا وائرس کے بحران اور دوسرے امور پر بات کی۔ اس دوران اسرائیل کے وزیر دفاع نے امید ظاہر کی کہ ہندوستان کے ساتھ مضبوط تعلقات جاری رہیں گے اور اس سے کورونا پر قابو پانے کی عالمی کوششوں میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعلقات اور ہمارے خطوں میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ امنگوں کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے خوشی ہوئی ہے۔ قومی دارالحکومت دہلی میں سونے کی قیمتیں نئی بلندی کو پہنچ گئی ہیں، جن میں 475 روپے کا اضافہ ہوا اور وہ فی 10 گرام 51,946 روپے ہو گیا۔ بین الاقوامی قیمتوں میں اضافے کے درمیان یہ اضافہ ہوا ہے۔ ایچ ڈی ایف سی سیکیورٹیز نے یہ بات بتائی۔ سابقہ ٹریڈ میں سونے کی قیمت 51,471 روپے فی 10 گرام پر بند ہوئی تھی، تاہم چاندی کی قیمت میں 109 روپے کی کمی آئی اور وہ 62,262 روپے فی کلو ہو گئی۔ دہلی ہائی کورٹ نے آج اس وقت درخواست کی سماعت آئندہ 9 اکتوبر تک ملتوی کر دی جس کے ذریعے مانگ کی گئی ہے کہ تبلیغی جماعت سے متعلقہ ایک کیس قومی تحقیقاتی ایجنسی یعنی NIA کو منتقل کیا جائے۔ ہائی کورٹ نے اس بات کا نوٹ لینے کے بعد کہ ایسا ہی ایک معاملہ سپریم کورٹ میں زیر دوران ہے، یہ درخواست کی سماعت 9 اکتوبر تک ملتوی کی جاتی ہے۔ جسٹس سدھارتھ اور تلونت سنگھ پر مشتمل ڈویژن بینچ نے گھنشیام اپادھیائے کی پیش کردہ درخواست کی سماعت کی۔ اس درخواست میں مانگ کی گئی ہے کہ تبلیغی جماعت کے رہنما مولانا سعد کے خلاف دائر کردہ مقدمے میں تحقیقات دہلی پولیس سے NIA کو منتقل کی جائے۔ راجستھان ہائی کورٹ نے جمعے کے دن حکم دیا کہ کانگریس کے 19 باغی ارکان اسمبلی کو جاری نوٹس نااہلی کے تعلق سے جوں کا توں موقف برقرار رکھا جائے۔ ہائی کورٹ نے ایک درخواست گزار رکن اسمبلی پرتھوی راج مینا کی یہ درخواست سماعت کے لیے قبول کر لی کہ مرکز کو جاری کیس میں فریق بنایا جائے۔ سابق ڈپٹی چیف منسٹر سچن پائلٹ اور 18 دیگر ارکان اسمبلی اسپیکر سی پی جوشی کی طرف سے نوٹس جاری ہونے کے بعد ہائی کورٹ سے رجوع ہوئے تھے۔ اسپیکر کو اب 14 جولائی کی نوٹسوں پر کارروائی سے باز رکھا گیا ہے۔ اتر پردیش میں لا اینڈ آرڈر غنڈوں کے سامنے خود سپرد ہو گیا ہے۔
आम आदमी मकानों, सड़कों या दफातर में महफूज नहीं है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी का ये बयान है। अगवा किए गए नौजवान संजीत यादव के कत्ल पर योगी हुकूमत को घेरते हुए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा ने बताया कि रियासत में लॉ एंड ऑर्डर का कोई वजूद नहीं है। अपने ट्वीट में प्रियंका गांधी वड्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल फौत हो चुकी है और ये दावा भी किया जा रहा है कि आम आदमी की जानें भी ली जा रही है, जिससे कोई भी खुद को महफूज नहीं समझ रहा है, चाहे वो घरों में हो, सड़कों पर हो या दफातर में हो। नरेंद्र मोदी हुकूमत 6 साल कबल अवाम से बुलंदबांग दावों के साथ तश्कील पाई थी, लेकिन एक मियाद और 1 साल गुजर जाने के बाद गरीब लोग मजीद गरीब हो गए, मईशत बदहाल हो गई। मुख्तसर यह कि किसी भी शोबे में मोदी हुकूमत का कोई कारनामा नजर नहीं आया। ताहम अब आलमी वबा कोरोना वायरस के मामले में हिंदुस्तान तेजी से नंबर 2 मुल्क बनने गामजन है। चीन से यह वायरस शुरू हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा मुतासरीन अमेरिका में है। दूसरे नंबर पर ब्राजील और तीसरे नंबर पर हिंदुस्तान है। इंडिया में अब रोजाना लगभग 50,000 नए कोरोना मरीजों का इजाफा हो रहा है। चुनांचे मोदी हुकूमत में कुछ और ना सही, कोरोना वायरस में मुल्क बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले वाक़े ज्वालामुखी तहसील के कुलदीप कुमार को अपने बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन खरीदना इतना जरूरी था कि कमाई का जरिया अपनी गाय बेहद कम कीमत पर फरोख्त कर दी। इसने अपनी गाय फरोख्त कर दी, जो कि आमदनी का वाहिद जरिया थी। बताया जाता है कि शेड्यूल्ड कास्ट से ताल्लुक रखने वाले कुलदीप कुमार को अपने बच्चों की ऑनलाइन तालीम के लिए स्मार्टफोन खरीदना इतना जरूरी था कि फैमिली की आमदनी का वाहिद जरिया रही गाय महज 6,000 रुपये में फरोख्त करनी पड़ी। इसकी बेटी अनु और बेटा वंश एक सरकारी स्कूल में चौथे और दूसरी क्लास में पढ़ते हैं। इन्हें अब स्मार्टफोन के जरिए क्लासेस लिए जा रही हैं। मध्य प्रदेश के जिला छिंदवाड़ा में 2 लड़कियां उस वक्त नदी के ऐन वसत में फंस गई जब सेल्फी लेने के दौरान नदी में अचानक पानी का बहाव तेज हो गया। इस वाक़े के बाद दोस्तों ने फौरन पुलिस को इत्तला दी, जिन्होंने आकर दोनों लड़कियों को बाहिफाजत नदी से निकाल लिया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत किसी भी बहरान से मुतालिक इनके मशवरे पर अमल करने को तैयार नहीं है और मुल्क के अवाम को खतरे में डाल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कोविड-19 और मुआशी सूरत-ए-हाल के बारे में इन्हें मुतन्नबा किया। उन्होंने इसे मुस्तरद कर दिया। इसके बाद मुल्क में एक बड़ा बहरान पैदा हो गया। मैं इन्हें चीन के बारे में खबरदार कर रहा हूं, लेकिन वो इस इंतबा को मुस्तरद कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की अव्वलीन यूनिवर्सिटी बनी, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा आलमी मखसूस जोग्राफिया इत्तलात मैनेजमेंट यानी UNGGIM की रुकनियत अता की गई है। सर सैयद इस रुकनियत के साथ AMU अपने इंटरडिसिप्लिनरी शोबे बराए रिमोट सेंसिंग व GIC एप्लीकेशंस के जरिए आलमी सतह पर मखसूस जोग्राफिया इत्तलात मैनेजमेंट के शोबे में बैनुल-अक़वामी ताउन को फ़रोग़ देने में ख़ास किरदार अदा करेगी। वाज़ेह है कि AMU दुनिया के इन 49 तालीमी इदारों में से एक है जिसे UNGGIM की रुकनियत हासिल हुई है। इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न जैसे मौक़िर इदारे शामिल हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने इस्लाम पसंद नौजवान हामियों के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करते हुए जुमे को हज़ारों मुसल्लियों के साथ 86 साल में पहली मरतबा आया सूफिया में नमाज अदा की, जो इस्तांबुल का तारीख़ी मुकाम है, जो कभी ईसाई दुनिया का एक अहम गिरजाघर, कभी मस्जिद और फिर म्यूजियम था, लेकिन अब इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है। पूरे तुर्की से हज़ारों मुसलमान आया सूफिया में नमाज अदा करने के लिए आए और देखते ही देखते रोमन दौर की यादगार के बाहर खुसूसी तौर पर मुख्तस करदा इलाके में जमा हुए और नमाज में शामिल हुए। अहाता भर जाने की वजह से कई अफराद को वापस भेजना पड़ा। यूनान और अमेरिका में ख़ुदामत पसंद ईसाई रहनुमाओं ने आया सूफिया को मस्जिद में तब्दील करने पर यौम सोग मनाया। इस मौके पर तैयब एर्दोगान ने कुरान मजीद की तिलावत की। तुर्की के मजहबी इदारे के सरबरा अली अरबाज ने नमाज जुम्मा की इमामत की और कहा कि अब कभी मुसलमानों को 6वीं सदी ईस्वी की इस इमारत में नमाज के हक से महरूम नहीं किया जाएगा। सदर एर्दोगान ने कहा कि 3,50,000 अफराद ने नमाज जुम्मा अदा की। अंदरून सऊदी अरब से आज़मीन हज का पहला कारवां जुमे को मक्के मुकर्रमा पहुंचा। वज़ारत हज व उम्रे के आला ओहदेदारों ने महकमा शहरी हवाबाजी के ताउन से किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिद्दा पर कसीम से आने वाले आज़मीन हज का खैर मकदम किया। तमाम मुतालिका इदारों ने इस साल हज करने वालों की खिदमत के लिए इंतजामात मुकम्मिल कर लिए हैं। शहर हैदराबाद में तरक्याती सरगर्मियों में शिद्दत पैदा करके TRS ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात की तैयारियों का अमलन आगाज कर दिया है। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मंसूबे के मुताबिक जनवरी से कबल इंतखाबात के इनेकाद मुमकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं। ताहम पार्टी ने KTR की क़यादत में शहर में दोबारा बेहतर मुजाहरे की तैयारी कर ली है। KTR ने 2016 में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में पार्टी की क़यादत की थी और मेयर के ओहदे पर कब्जा किया था।
दोबारा इनकी क़यादत में 115 नशिस्तों पर कामयाबी के निशाने के साथ टीआरएस ने अपनी सरगर्मियां शुरू कर दी है। मौसूख ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर जीएचएमसी इंतखाबात के मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक इनेकाद के हक़ में है, लेकिन पार्टी के बाज़ कायदीन इन्हें आजिलाना इंतखाबात का मशवरा दे रहे हैं। हैदराबाद में कांग्रेस, बीजेपी और दीगर अपोजिशन जमातों में कोई भी इस मौक़िफ़ में नहीं है कि टीआरएस का मुकाबला कर सके, लिहाजा कॉरपोरेशन पर बासानी दोबारा कब्जे के लिए टीआरएस ने तरक्याती कामों का जाल फैला दिया है। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान केटीआर ने शहर में मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमात और प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। उस्मानिया दवाखाने को महफूज रखने हुकूमत से मुतालबा करते हुए ऑनलाइन पिटीशन का आगाज किया गया है, जिस पर शहरियों का जबरदस्त रद्दअमल आने लगा है। शहर के तहजीबी विरसा को तबाही से बचाने और दवाखाने उस्मानिया की तारीखी इमारत को मुनज़्ज़म करने के बजाय इसकी मरम्मत और हिफाजत को यकीनी बनाने का मुतालबा करते हुए दरख्वास्त के साथ मीडिया में शाये खबरों के लिंक दिए गए हैं, जिनमें दवाखाने उस्मानिया की तारीखी इमारत को मुनज़्ज़म करने की कोशिशों का तस्करा किया गया है। तेलंगाना हुकूमत ने हाईकोर्ट को बताया कि वो कोरोना हेल्थ बुलेटिन की तरह सेक्रेटरीट इन्हदामी कार्रवाई पर बुलेटिन जारी करने तैयार है। इन्हदामी कार्रवाई के कवरेज की मीडिया को इजाज़त के मसले पर दायर दरख्वास्त की आज समाअत की गई। अदालत ने हुकूमत को कवरेज की इजाज़त के मसले पर फैसला करने आज तक का वक्त दिया था। हुकूमत की जानिब से अदालत को बताया गया कि वो हेल्थ बुलेटिन की तरह इन्हदामी कार्रवाई की तफसील पर मुश्तमिल बुलेटिन जारी करने तैयार है। दरख्वास्त गुजार ने इन्हदामी कार्रवाई के लाइव कवरेज की इजाज़त का मुतालबा किया था। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर व साबिक रुकने पार्लियामेंट के कविता घर में क्वारंटाइन इख्तियार कर चुकी है, क्योंकि इनका ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव करार पाया गया। गुज़िश्ता रोज़ कविता के ड्राइवर के कोरोना पॉजिटिव होने की इत्तला आई थी, जिसके बाद जुम्मे को कविता ने घरेलू क्वारंटाइन इख्तियार करने का फैसला किया। कविता के साथ इनके अफराद ख़ानदान भी घरेलू क्वारंटाइन में चले गए हैं। कविता और इनके अफराद ख़ानदान डॉक्टर्स के मशवरे पर 14 दिन तक घर में ही बंद रहेंगे। तेलंगाना में मुहलिक वबा के केसेस में गैर मामूली इजाफे के बाद कई अजला में ताजिरों ने रजाकाराना लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। करीमनगर, मेदक, सिद्दीपेट, आदिलाबाद और खम्भम में ताजिरों ने अपने तौर पर 1 हफ्ते तक कारोबार को बंद रखने का फैसला किया है, ताकि कोरोना से बच सके। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के इम्कानात को मौहूम पाकर ताजिर रजाकाराना लॉकडाउन का ऐलान कर रहे हैं। हैदराबाद के कई इलाकों में 2 हफ्तों तक ताजिरीन ने अपने कारोबार बंद रखे थे। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी के एसएससी और इंटरमीडिएट के तलबा को भी कामयाब करार दिया गया है। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी तालीमात चित्रा रामचंद्रन ने इस सिलसिले में आज सरकारी अहकाम जारी कर दिए। रियासत में ओपन स्कूल के तहत एसएससी और इंटरमीडिएट के 72,000 तलबा ज़ेर तालीम थे। ओपन एसएससी में 42,000 और ओपन इंटरमीडिएट में 30,000 तलबा ज़ेर तालीम थे। हुकूमत के इस फैसले से 72,000 तलबा का मजमूई तौर पर फ़ायदा हुआ।